Good morning, this is Dr. R.S. Moria helping you out to get a better understanding of English language and also enable you to speak confidently, fluently and with a great authority and command in a given situation. So guys, now let's jump right in on the topic itself which I am going to explain today. So the topic which I intend to explain is the advanced expression. You are learning how to speak English, but some of you might be willing to have an advanced expression. That's true. All the people, all the learners are not of the same category or the same level. Some want to enhance their level of understanding, level of expression. So expression is definitely a powerful thing in the world. If you have good expression of language, you command, you are at the driving seat. So इसके लिए क्या है कि आपको you have to be creative. Creativeness is important. Be creative. If you have learned something, you try to get better of it. Go on improving yourself. So be creative in the sense you be creative, and then again be motivated. Be motivated means that you should not be taken into account that this will not succeed. Definitely good things always thrive. Sometimes it seems that it is not getting the success, as much success as you desire, but the thing is, good things always stand super. Good practices always appreciated. So be motivated that you are learning very good thing. You are learning to speak and better and better, and then enjoy change. If something has happened to you because of learning means change. Learning itself means a change in the behavior of person is called learning. So if there is a change, it means that we have learned. तो अब हम आपको बताते हैं कि जो चीज़ें आपने सीख ली है उससे और थोड़ा कैसे ज़्यादा सीखा जाता, अच्छा सीखा जाता. जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो उसको बोलते हैं टू विजिट. टू विजिट ये वर्ब है. टू विजिट का मतलब होता है किसी के यहाँ जाना, मिलना. तो इसके जगह टू विजिट के जगह आप लिख सकते हो कॉल ऑन. ये भी वर्ब है, इसको आप एडवांस वर्ब बोल सकते हो. इसको बोलिए कॉल ऑन. Instead of saying I visited him, you said I called on him. I called on him. मैं उसके यहाँ गया. I called on him on Monday last Monday को I called on him. I visited him. तो इस तरह से आप इस तरह से चेंज कर सकते हो. ये दूसरा लिख सकते हो जैसे कि है कि यस. सेकेंड इज वेट. जैसे है जैसे टू वेट भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. वेट मतलब होता है इंतज़ार करना. टू वेट का मतलब होता है इंतज़ार. आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसको कहते हैं टू वेट. तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो? You can just write at this place and see. Just a few minutes. Wait.
टू वेट को हम कहते हैं इंतज़ार करना, और इसके जगह इसका जो सब्स्टिट्यूट है उसको लिख सकते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन, इसको लिखेंगे होल्ड ऑन। जैसे लिख सकते हैं ही हेल्ड ऑन मी, he held on me for a few minutes and talked about my health. He held on me, नहीं, उसने मेरा इंतजार किया। ही वेट मतलब इंतजार। he held on and talked about my health। तो held on मतलब होता है इंतजार, वेट करना, to held on। और तीसरा है टू सरप्राइज, किसी को आश्चर्य में डालने को बोलते हैं सरप्राइज। जैसे किसी ने आपको सरप्राइज किया तो उसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ब्लो ऑन। ही या सी ब्लू ऑन, सी blew on by giving the news of her selection in UPSC exams। तो she blew on me, या कुछ कर सकते, she blew on मतलब she surprised me by giving the news that she qualified the UPSC exam। तो यहाँ मतलब होता है सरप्राइज करना, सरप्राइज, टू सरप्राइज। तो ब्लो ऑन या ब्लू ऑन आपको बताएंगे। जैसे ब्लो ऑन है तो उसको पास्ट में ब्लू ऑन लिखते हैं, इसी तरह से इसका प्रयोग होता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये है अच्छा एक्सप्रेशन है, टू अंडरस्टैंड, समझना। चौथा है टू अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। अब इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड की जगह में क्या लिख सकते हैं, टू फिगर आउट। इसको लिखिए टू फिगर आउट, टू फिगर आउट। तो कैसे इसको बनाइएगा, टू फिगर आउट। जैसे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मैन ही इज, मैं यह नहीं समझ सका कि किस तरह का ये आदमी है। तो इसके लिए आप फिगर आउट लिखिए, आई कुड नॉट फिगर आउट, नहीं, आई कुड नॉट फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, आई कुड नॉट फिगर आउट। मैं ये नहीं जान सका या मैं मतलब नहीं निकाल सका, आई कुड नॉट figure out। I could not figure out, understand, इसका मतलब होता है understand। ये I could not figure out what kind of man he is, what kind of man he is। तो गाइस आप इसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड की जगह आप क्या लिखोगे, टू फिगर आउट, टू फिगर आउट। और दूसरा एक्सप्रेशन है टू चैलेंज, टू चैलेंज, टू चैलेंज मतलब होता प्रतिस्पर्धा। टू चैलेंज मतलब हिंदी में यू नो आई दैट
हिंदी में क्या होता है, इट्स नॉट गेटिंग, इट्स नॉट कमिंग टू मी इजीली। तो चैलेंज तो बहुत कॉमन वर्ड है, तो अगर टू चैलेंज है तो उसको किस तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे चैलेंज को? टेक ऑन। टू चैलेंज को बोलेंगे टेक ऑन, टू चैलेंज, चैलेंज, टू चैलेंज। टू चैलेंज के जगह हम क्या लिख सकते हैं? टू टेक ऑन, टेक ऑन की टेक ऑन। He took on the new job as a challenge. He took on the new job as a challenge and tried to do his best for it. So he took the job as a challenge, the new job as a challenge. तो चैलेंज की जगह आप जो है टेक ऑन का प्रयोग कर सकते हो। टेक ऑन, चैलेंज की जगह आप किसका प्रयोग करोगे? टेक ऑन का प्रयोग करोगे। और फिर इसके बाद जैसे आजकल ये बहुत साधारण चीज़ है, कपड़ा पहनते हैं, पहनने को क्या बोलते हैं? टू वियर। तो टू वियर की जगह क्या लिखेंगे? टू वियर की जगह क्या लिखेंगे? टू वियर की जगह पुट ऑन लिखेंगे, पुट ऑन। जैसे he put on a new hat, and he was looking handsome. By putting on new hat, he looked handsome. नहीं है ऐसे, है ना? By putting on a new hat, a new cap, he looked handsome. Handsome को handsome नहीं पढ़ा जाता, handsome, he look handsome। और अच्छा, एक और इस तरह से है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत कॉमन है, आप रोज यूज करते हो, आप रोज इसको यूज करते हो, और जब थोड़ा सा आप चेंज करके इसको कहोगे तो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा एक्सप्रेशन होता है। अभी जैसे बता रहे हैं एक और ये वर्ड है जो जिसको ही बराबर हम यूज़ करते हैं, हाँ, बहस करना, टू आर्ग्यू। जैसे इसी से हम बहस करते रहते हैं, आर्ग्यू, टू आर्ग्यू मतलब बहस करना, टू आर्ग्यू, बहस करना। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? तो जब हम बहस करते हैं तो इसके जगह लगता है टू फाइट ओवर एवरीथिंग, हम बोलते हैं टू फाइट ओवर एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फाइट ओवर एवरीथिंग, फाइट ओवर एवरीथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि मारापीटी नहीं होता, बात पर जो है झगड़ना इसको कहते हैं, या तरह से तर्क वितर्क करना, तो आप इसको बोलते हैं। तो फाइट ओवर एवरीथिंग। तो देयर इज नो नीड टू फाइट ओवर एवरीथिंग ऑल डे, देयर इज नो नीड टू फाइट ओवर एवरीथिंग ऑल डे। सो इस तरह से हम अपने जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे और भी क्या चीज़ है, जैसे पास्ट है, पास्ट जो है ये अक्सर पास्ट की चीज़ को ऐसे कहते हैं,
जैसे पास्ट जब कहना होता है तो आप इसको उपयोग कीजिए। पास्ट है, अगर इसको पास्ट की चीज़ को आपको कहना है तो आप लुक बैक उपयोग कीजिए। लुक बैक, लुक बैक मतलब होता है पीछे की तरफ देखना। इफ यू लुक बैक 10 years ago, if you look back 10 years ago, you will find the things were different. चीज़ें अलग थी, changes were there. So if you look back, you will find not very much, not many changes were taking place. तो पॉजिटिव निगेटिव जिसमें आप बनाना चाहते हो तो लुक बैक का आप यूज कर सकते हो। इफ़ यू लुक बैक मतलब इफ़ यू गो टू द पास्ट, तो ऐसे। और जैसे अगर कोई चीज़ कैंसिल हम करते रहते हैं, बराबर कैंसिल करते रहते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल कर देते हैं तो क्या लिखते हैं? अगर कैंसिल मतलब होता है कैंसिल, कैंसिल मतलब होता है रद्द कर देना। कोई चीज़ हम रद्द कर देते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? कैंसिल को लिखते हैं जब हम कोई प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। जैसे दे कैंसिल द प्रोग्राम, दे कैंसिल द प्रोग्राम, दे कैंसिल द प्रोग्राम, कैंसिल द प्रोग्राम। तो इस कैंसिल की जगह पर क्या लिखोगे? यहाँ कैंसिल की जगह हम लिखेंगे कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ, स्थगित करना। हाँ, दे कॉल्ड ऑफ द प्रोग्राम, आप लिखो दे कॉल्ड ऑफ द प्रोग्राम। सो अच्छा गाइस, इस तरह से आप बना सकते हो। जैसे अगर जैसे टू अर्न, कमाना, जैसे ही अर्न a lot of money in business, he earned a lot of money in business, तो आप चेंज कर सकते हो his shops brings him a lot of money, या his business brings him a lot of money, brings him a lot of money, shop brings him a lot of money, so business, his business brings him a lot of money। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से हम चेंज करते रहते हैं। तो चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, बदलते रहो, चेंज करते रहो। चेंज का नाम ही प्रोग्रेस होता है। इफ़ यू रिमेन एट where you were at 10 or 20 years before, there is no life. So go on changing, 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 and change is what we call life. Another word for life is change. So that's all for guys. आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो है अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, अच्छा पढ़ने की। ये अलग चीज़ है कि आप सब समझ रहे हो, जान रहे हो, लेकिन ट्राई टू बी बेटर। ये जो है ये समय का और आपके जीवन का एक मतलब होना चाहिए कि इट शुड बी बेटर। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।